Good to have you with us on this edition of the Urban Debate. Tonight, we put the spotlight once again on the standoff between the farmers and the central government. We tell you what's been happening at the various protest sites of the farmers around the Delhi border areas. And we ask a very simple question. What next? What now? Now look at the situation. Look at the visuals which are on your screens with the way security has been stepped up in the past 2 days. Barbed wires, layers and lines of barricades. Nails dug into the roads, laid into the roads. Drones to monitor the situation. Barricades, cement structures. We actually also have visuals where you see the concrete mixer pouring in this cement, and that's the structure there. This is what is happening. Multi-layered security. It almost looks like a battlefield right now. This is how fortified the protest sites in Singhu, Ghazipur have become. Now the farmers say, viewers, that unless and until you create a conducive atmosphere, we are not going to go ahead with any talks. We are not going to initiate any talks. By conducive atmosphere, they obviously mean take away all of these blockades, resume the internet connectivity. For now, several days in many districts of Haryana and at these protest sites, internet has been suspended. We do also know that a large number of Twitter accounts was suspended yesterday for many hours, though by the end of the day, that decision was reversed and those accounts were activated again. But these are the kind of things that have developed in the last couple of days. Now the government's offer, they say, still stands. If you remember, a couple of days ago when the Prime Minister chaired a meeting with all parties, with the leaders of all political parties for this budget session, he said that the government's offer to suspend the laws for 1.5 years and hold conversations still stands. He said that the Agriculture Minister is just a phone call away for any of the farmers. And Prime Minister asked the political leaders to take this message to their supporters and across the country. Now, while that's been the messaging from the government, that we are open for talks, farmers say this doesn't look like messaging that you want to talk to us. This looks like hardening of your stand and that you don't want to have any conversation. On the other side, the police justifies these kind of security measures in the light of what happened on January 26. On January 26, when a large mega farmers rally was allowed in the national capital, it went out of control very quickly. And we saw violence unfold. And so the police says, well, all of this is part of our precautionary measures. We don't want any trouble. But if this is the kind of tough police measures that we are going to implement, what does this really mean for the government-Kisan talks? Will we ever see that resume? What happens to this deadlock? Let's say good evening to the panelists who are joining us on this conversation. Pushpender Singh, President of the Kisan Shakti Sangh; Rajiv Ranjan, spokesperson for the Janata Dal United; Chaudhry Savit Malik, National President for the Bharatiya Kisan Union; Neha Joshi, spokesperson for the BJP. I also have Radhika Kera, National Spokesperson of the Congress, who will be joining us in just a bit. But let me start off with Neha Joshi. Neha, on one hand, we are sending the message that we want to have a conversation and that resolution is only via dialogue. On the other hand, we seem to be treating them as the biggest law and order challenge in our country today. Thank you, Tanvi. Thank you for having me. Tanvi, I think you said it right in your intro that the Prime Minister has gone on record to say that the only solution is dialogue. The offer that the laws be held in abeyance for a period of 18 months, that still stands. The offer for the farmers to have a conversation, a fresh round of conversation with the Agriculture Minister or any other minister, in fact, that offer still stands. However, what we can't take a chance with is security of the people of Delhi. What we saw on the 26th
We can't see a repeat of that. Tanvi, I was on your channel on the 26th, in fact, and I remember, a couple of panelists, and I think you may have also raised this concern that if there were intelligence inputs, that such scenes could have happened, or such activities could have taken place, or if the protests were hijacked by elements that shouldn't have been there, why didn't the police prepare in advance? Here you have the police preparing in advance. I, as a citizen of the country, want to believe that the police has enough reasons to believe that there may be a law and order situation that they need to be prepared for. So, this has nothing to do with the farmers of the country. This has nothing to do with the channel for dialogue that has always been open from the government side. But Neha, haven't those people be picked up yet? We know several arrests have been made. Several others have been detained, are being tracked, hunted down. So are we saying that we are still looking out for some more troublemakers who may be at these protest sites? Oh, absolutely, Tanvi. The police is on their job. Several arrests have been made, several FIRs have been lodged, not just for people who actually were part of this rioting mob, but also for people who incited this mob, and several alleged farmer leaders are also part of ones on whom these FIRs have been lodged. So I think let the law take its course. This is the police preparing. They know best how to do their job. And, just a couple of days back, we've had an incident in the national capital where an ID device went off close to the Israel embassy. We can't be taking chances with national security, and the police is doing just that. Okay, let me get Pushpinder Singh to come in and respond. Pushpinder Singh ji, 26 जनवरी को जो हुआ वो सबने देखा. अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं तो उनको रोकना भी पुलिस की जिम्मेदारी है. एक ब्लास्ट भी हो चुका है हमारे दिल्ली में. तो ये सब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इसको उस नजरिए से क्यों नहीं देख रहा किसान? देखिए, जो इन्होंने शब्द अभी इस्तेमाल किया है ये दम्भ का शब्द है. एलिज्ड फार्मर्स लीडर. These are also people who allegedly voted for you, madam. Don't forget this. ये 70 करोड़ किसान और 30 करोड़ मजदूर हैं, 100 करोड़ है. और आपकी जो आप मेंबरशिप क्लेम करते हैं वो 10 करोड़ है. 2 सीटों से आपको 300 सीटों पर दे करके जिता करके वहां दिल्ली में हमने बिठाया. अगर जूनियर टिकैत साहब फार्मर लीडर है तो नेहा जोशी भी फार्मर लीडर है. मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर. सुन लीजिए, खेती साहब कर रहे हैं उतनी खेती मैं भी कर रही हूँ. अरे आप बीच में मत बोलिए प्लीज. आपके बीच में कोई बोला नहीं है. आप किसी की सुनते नहीं है. अगर मतलब आप जो है राकेश टिकैत जी की बात कर रहे हैं वो किसान नेता नहीं है. तो नेहा जोशी अपने आप को राकेश टिकैत से कंपेयर कर रही है. चलिए आप कॉल दीजिए. आप अभी के रात को कितने आदमी तुम्हारे साथ सोने के लिए आ जाते हैं. देखते हैं वहां आकर के कितने सड़क पे आकर के आप सोते हो. कौन सी सड़क पे जाकर के सोना बताइए. कितने लोग आते हैं आपके साथ. आप अपने आप को राकेश टिकैत के साथ कंपेयर कर रही है. कमाल कर दिया. ऐसा जो है कभी अभूतपूर्व आंदोलन ये हो रहा है. लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पे पड़े हुए हैं. 200 किसान जो है वहां पर शहादत अपनी दे चुके हैं. 200 से ज्यादा. और आप जो है बैरिकेडिंग लगा रहे हैं. वो कृपया शहादत शब्द का इस्तेमाल इतने हल्के तरीके से मत कीजिए सिंह साहब. शहादत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए. माइक डाउन करिए तुरंत. ये दूसरों के बीच में बोलने की इनको बहुत बुरी आदत है. शहादत नहीं हुई है. ये यहाँ आपकी वजह से पड़े हुए हैं. आप उनकी सुनवाई नहीं करना चाहते हैं. बैरिकेडिंग का अपमान हुआ वो आपको. ओके, वन एट अ टाइम प्लीज. एक मिनट एक करके. नेहा मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ जैसे कि हमेशा ही होता है मिरर नाउ की डिबेट्स में. सबको मौका मिलता है. सब अपनी बारी जब आती है तब बोलते हैं. आप उनकी बात खत्म होने दीजिए. आई विल गिव यू चांस टू रिस्पॉन्ड. लेट्स नॉट इंटरप्ट. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. किसी की नहीं समझ में आती. फिर पुष्पेंद्र जी, बड़े आंदोलन हुए. शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे हुए हैं. उस दिन 26 तारीख की जो घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. आपने वो करवाई है. वो अपने लोग भेज करके सारे जिसके लीडरशिप में वो काम हुआ है उसके सारे सबके किसके साथ फोटो है उसके नाए. सब चीज स्पष्ट हो चुकी है. दिल्ली पुलिस का भी आपने उपहास उड़ा दिया. लाल किले का भी उपहास आपने उड़वा दिया. अरे लाल किले को तो बड़ी बड़ी सेनाएं लाखों लोग तोप के साथ आते थे तब नहीं तोड़ पाते थे. घुस नहीं पाते थे. वो आराम से घुस गए. दिल्ली पुलिस जिसके सामने परिंदा भी पर नहीं मार सकता. मैं दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करना चाहूंगा. उसको भी आपने शिथिल होने का लूज होने का जो है वहां पे आदेश दे दिए. उनको जाने दिया. झंडा आरोप किया.
पर मुझे एक बात बताइए, मैं नेहा से जवाब ले लूंगी, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह, ये बात तो तय है कि आश्वासन किसान नेताओं ने दिया था पीसफुल रैली का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हो गई गड़बड़, अब ये बोलना कि तुमने किया या तुमने किया, दोनों तरफ से बहुत एविडेंस है और बहुत सवाल है, लेकिन गड़बड़ हुई आश्वासन के बाद। जब आपने सरकार से बात की, वो फॉलो नहीं हुआ, वो टूट गया, वो जो पैक्ट था, तो उसका कहीं तो आपको रेपरकशन देखना पड़ेगा। अगर उसके बाद पुलिस बैरिकेडिंग सिक्योरिटी बढ़ा रही है, तो नुकसान क्या हो रहा है? उससे बातचीत क्यों रोकनी? नहीं, ऐसा है, जब वार्ता होती है तन्वी जी, तो वार्ता में फूल बिछाए जाते हैं, ये तो कांटे बिछा रहे हैं रास्ते में। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, सारे देश में, गांव में आप पता कर लेना, जो बिहेवियर आप किसानों के साथ कर रहे हो, जब वोट मांगने आओगे तो आपके साथ भी यही बिहेवियर किया जाएगा। किसान जो है, आपके बहिष्कार का बोर्ड गांव गांव के बाहर लगने शुरू हो गए हैं, और जब आप आओगे तो ऐसी कील से जो है आपके टायर भी पंचर करने की बात आ रही है, ऐसी मुझे लोग बता रहे हैं कि इनका स्वागत भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। अरे 2 सीटों से 300 सीटों पे आपको पहुंचा दिया, 300 से 2 पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इंटरनेट बंद कर दिया। ठीक है, ओके। नेहा जोशी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर बाकी अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे। Tanvi, I'm sorry I got disconnected. Could you please repeat the question that he had for me? क्वेश्चन, ही हैज अ सिंपल कमेंट फॉर यू कि अगर आप इस तरीके से कांटों से उनको वेलकम करेंगे बातचीत के लिए फूलों के बजाय, तो फिर कौन आप पे भरोसा करेगा? और किसान आज बहुत गुस्सा हो चुका है, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, कल अगली बार आप वोट मांगने जाएंगे तो उसका जवाब आपको तब मिलेगा। देखिए तन्वी, हर चीज में हम वोट बीच में नहीं लाते। किसानों ने, देश के मजदूरों ने, देश की गरीब जनता ने वोट देकर दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, विश्वास जताया है, और उसी विश्वास के चलते जिन कृषि कानूनों की इस देश को बहुत समय से दरकार थी, वो कृषि कानून आए। इसके बावजूद जब कुछ किसानों ने इसके ऊपर कोई संशय जताया, बातचीत की बात हुई, 11 राउंड की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और बातचीत के चैनल अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, अगर कोई किसान नेता अपने आप को, जो किसान नेता बता रहे हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंपों के और कॉलेजों के ये मालिक हैं, लेकिन अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं, आप किसान किसकी बात कर रही हैं? आप किसकी बात कर रही हैं? वो अपनी राजनीति करनी है, इसमें किसान के हित का कहीं सवाल ही नहीं आ रहा है तन्वी। अगर किसान के हित का सवाल आता तो अमेंडमेंट्स की बात होती, कोर्स करेक्शन की बात होती, रोल बैक की बात कहां से आती? बट दीज आर पीपल, नेहा, who are legitimately were part of the negotiation group that the government was responding to. आप अलग किसी की बात करें तो ठीक है, लेकिन राकेश टिकैत से तो सरकार बात कर रही थी। आज उनको आप डिस्क्रेडिट कर दें तो अलग बात है, फिर आप उनसे बात करिए जिसमें आपको वैल्यू दिखती है। Allow me, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट था, इस प्रोटेस्ट से अलग हो चुका है। बीकेयू लोक शक्ति भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट था, इससे अलग हो चुका है। किसान महापंचायत भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट था, रामपाल अलग हो चुके हैं। भारतीय इससे अलग हो चुके हैं। तो अगर कुछ फैक्शंस को इससे परेशानी हो रही है, अगर 30 यूनियन इसके अगेंस्ट हैं, तो 300 यूनियन इसके साथ खड़ी है। उनको इन कृषि कानूनों में अच्छी चीजें दिख रही हैं, उनको लग रहा है कि देश के किसान से कोई इनसे, ठीक है, ये ओके, ये पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि देश भर के किसान जो है सरकार से आज गुस्सा है और उनको ये मैसेजिंग मिलेगी जब वो वोट मांगने जाएंगे। चौधरी सवित मलिक, भाजपा का कहना है कि 300 यूनियन हमारे भी साथ है, अगर 30 आपके साथ है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तन्वी जी, आपने अभी महापंचायतें देखी होंगी जो लगातार यूपी में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, हरियाणा में हो रही है। हमारी बहन जो है नेहा जी थोड़ा अति उत्साहित हो रही है। मुझे लग रहा है बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर आ रहा है कि आप जल्दी से वो कर लो। जो हमारे देश का पर्सनल कमेंट्स मत बोलिए चौधरी सवित मलिक जी, किसी भी पैनलिस्ट पे पर्सनल रिमार्क मत करिए, इशू जो है उस पे बात करते हैं। जो हमारे देश का टैक्स पेयर का पैसा है वो कभी सड़कें खोदने में जा रहा है, कभी वो कील गाड़ने में जा रहा है, कभी वो उखाड़ने में जाएगा। क्या हमारे देश के राजा अब ऐसा करेंगे? ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐसा आंदोलन कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। और ये जो पार्टी है ये आंदोलन के भरोसे यहाँ तक पहुंची है, 300 सीटों तक।
इन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ आंदोलन किए, कहाँ-कहाँ यात्राएं निकाली हैं, तब इनको समझ में नहीं आता था। और किसान अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, तो उसके ऊपर तरह-तरह के चक्रव्यूह रचना की जा रही है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह रचे गए थे, किसान को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। इनके विधायक जाते हैं, लाठी डंडे लेके जाते हैं, किसान को उनकी गाड़ियां तोड़ते हैं, उनके ट्रैक्टर तोड़ते हैं। और किसान शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको रात के अंधेरे में बत्ती बंद करके लाठियां चलाई जाती है। और जो उपद्रवी लोग हैं, उनको ये पकड़ने में नाकामयाब नहीं है। नहीं, तो चौधरी मलिक तो अच्छी बात है, इतने बैरियर और लग गए और कीले लग गई और तारे लग गए, क्योंकि अब जो बाहर के लोग हैं वो भी नहीं आ सकते पत्थर मारने। तन्वी जी, किसानों को बैरियर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे आसपास भाई बहन रहते हैं, जो रोड चालू थे, उनको बंद करा जा रहा है, उनसे आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। और बाद में ये कहेंगे कि ये किसानों ने रोके हैं, ये हम इनका पर्दाफाश करना चाह रहे हैं। ये हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी हम लोग तो रामलीला मैदान जा रहे थे, किसने रोका हमको रास्ते में? इन्होंने सड़कें खोदी, पानी चलाया, लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, वहां बैठ गए। उसके बाद ये आरोप लगा रहे कि आपने सड़क बंद की है। अब हम एक तरफ सड़क पे बैठे थे, आधी सड़क खुली हुई थी, तो उसको बैरिकेड किया जा रहा है, जनता का पैसा वहां बर्बाद किया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग डर गए, आप लोग वार्तालाप ही नहीं करना चाहते। आपने जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा। 6,000 करोड़ रुपए आपने उसमें माइनस कर दिया है खेती के बजट में। आपने कहते हो हम बातचीत कर रहे हैं, किसान की बात माने। आपके पॉइंट्स, नेहा जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज आई हैव 2 more पैनलिस्ट और उनसे भी ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। राजीव रंजन जी मुझे जवाब दें, ये क्या ये सही संदेश जाता है? विजुअल्स तो सभी ने देख लिए पिछले 2 दिन में क्या है। अब मतलब दिल्ली पुलिस कल चादरा में खड़ी, वहां पे एक यूनिट वो ऐसा भाला और तलवार जैसा आयरन रॉड लेके, इससे कैसे लगेगा किसानों को कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज ये आंदोलन 69वें दिन में 11 राउंड की मीटिंग्स भी हो चुकी है। 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे कि सरकार समर्थित ये कार्रवाई थी या किसान संगठनों के कुछ उच्छृंखल तत्वों ने ये कार्रवाई की। ये तो समय आने पर पता चलेगा कि ये इसका सच क्या है। लेकिन राकेश टिकैत ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, लोगों को अलग अलग हिस्सों से बुलाए जाने के समय में जिस तरह के उकसावे भरे शब्द उन्होंने कहे, और जो घटनाएं दिल्ली में घटी, उनको जोड़ करके ऐसा जरूर लगता है कि मौन सहमति कई किसान संगठनों की इस अराजक स्थिति को बनाने में थी। और एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप ये कहते हैं कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, तो मुझे लगता है आप समाधान चाहते ही नहीं है। देश आज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदी और उसके बाद कोरोना के इस संक्रमण के दौर में देश का खजाना खाली हुआ। बजाय इसके कि आप देश के, या तो मैं बात कर लूं या आप कर लीजिए, तो आप ही कर लीजिए पहले। नहीं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राजीव रंजन, फिनिश योर पॉइंट प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसान तो इस देश में 70% से ज्यादा लोग किसान हैं। इसलिए कुछ लोग अगर किसान होने का दावा करें और बाकी को गैर किसान मान लेंगे, तो मैं समझता हूं ये बेईमानी है। हम सब किसान के बेटे हैं और हम सबों के घर में कहीं ना कहीं कृषि एक बड़ा स्रोत है। लेकिन लंबे समय से अगर ये राह इतना आसान रहा होता और लोग सुखी होते परंपरागत तरीकों से, तो बड़े बदलाव की आज जरूरत नहीं होती। लेकिन किसानों की आत्महत्याएं होती रही। जो लोग आज उकसा रहे हैं, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में बाजाबता इन कानूनों को लेकर के अपनी राय, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सवाल हो या एपीएमसी एक्ट का। और एपीएमसी एक्ट को लेकर के तो 2012 में बाजाबता कांग्रेस ने उस समय के 12 कांग्रेस शासित राज्यों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उस कानून के दायरे से बाहर निकालने की बात की थी। बाद में आप पार्टी ने भी वही किया। क्या शरद पवार जी ने कहा, क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन आज कहीं ना कहीं इन विपक्षी दलों के उकसावे का शिकार है। और जो किसान संगठन दावा कर रहे हैं कि वही किसानों की असली आवाज है, उनसे भी मेरी असहमति है कि बिहार से आप बताइए कहाँ किसान है, वहां आपको नहीं मिलेंगे, देश के अनेक राज्यों से नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं ऑफकोर्स आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राजीव रंजन उठाए हैं, और एक का तो जवाब राधिका खेरा को देना पड़ेगा और दूसरा फिर हमारे किसान रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं। राधिका खेरा, फर्स्ट यू,
The party that is allegedly now provoking the farmers, Pushpender ji, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आपके पास आ रही हूँ, is allegedly provoking the farmers today is the party one which should take responsibility for the state of the farmers today. Because for decades you didn't do anything, and then the laws that you propose are the ones you're opposing today. You know, Tanvi, if the Congress party had not done anything for the farmers, we would have seen a protest similar to what we are seeing today, which we are seeing in the history of the world. There has not been a protest like this anywhere in the world that we are seeing today, the way the farmers are protesting. We never saw that during the Congress rule. And of course, no government is perfect. Whether it is our government or any other government, there will be some times in some cases where we will fault and we will not be able to live up to what the people want from us. But accepting our mistake and rectifying it is what we have to do. But this government for almost 70 days has been ignoring the plight of the farmers. And I'm seeing the way the BJP spokesperson on national television are also talking about the farmers and discrediting the entire protest for over 70 days, almost 70 days. Their farmers are all around Delhi, bearing the cold, bearing the olay, the barish, and the lathis and the barbarta of the BJP government. They are bearing everything and they're still over there and they're still pouring out in numbers. Are the BJP leaders and spokespersons trying to say that those farmers are stupid, or are they dumb? And are they so naive that they will just sit over there, leave their houses, leave their beds, leave everything and stay out over there? You know, I really request the BJP leaders and spokespersons to actually go and see what is happening and how they're living over there. There are those trolleys where those farmers are sleeping day and night. Little children, 8-month-old babies, 90-year-old men and women are over there. And they're discrediting the entire movement. Now, they tried to do that even on 26 January when especially the whole world was watching what is happening. We saw how a BJP Karyakarta, Deep Sidhu, went and created havoc on 26 January. And how did he reach there? What was the police doing? That is a day when the police is supposed to be on their toes. It is 26 January. Everywhere there is barricading. How did those farmers, how were they allowed to go over there? Then again we saw at Singhu border when the BJP goons started pelting stones at the farmers. They are all still scot-free. And it is for everyone to see. One was the husband of Ward number 31 in Nigam Parshad, Anju Devi. One was a Pradeep Latwal, who was a Yuva Morcha Outer Delhi Upadhyaksh. Then there was a Pradeep Khatri Tholedar, who is the BJP for Kisan, the Kisan Morcha Zilla Prabhari. All these leaders were there. There are pictures and video evidences. And you also showed on your channel, there were lots of images and live coverage, even on your channel, Tanvi, which showed that the police was standing like a mute spectator. It is clear that the government and the police are hand in glove. And they're trying to malign the farmers for what? What are the farmers asking for? To take back those 3 laws which are harming them. What is the government all about? We live in a democratic country. Okay. Our government is for all the right. people, Multiple of the people, points. and by the people. I just want to say, while you may want to call him BJP Karyakarta, officially he is not a BJP Karyakarta. Deep Sidhu But is just the an other three actor who are. now does all kinds of activism, has been part of these farmer protests in his own capacity, not as an included form by these groups, but he's been there. पर ये सच्चाई है कि वो अभी तक फ्री हैं. उनको अभी तक नहीं अरेस्ट किया गया. कुछ और 100 लोग हैं जेल में या कहाँ हैं पता नहीं. Arrested for showing the truth. Yes. Internet is being shut down for showing the truth, so that okay. the truth does not. But before we get Neha to respond to this, and I will give you time. राजीव रंजन ने 2 बातें उठाई. दूसरी बात ये थी कि आप बताएं बिहार के किसान कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुष्पेंद्र जी. देखिए, जो नेहा जी ने कही या राजीव रंजन जी ने कही कि सारे संगठन छोड़ के चले गए हैं. अरे वहां भीड़ 10 गुना हो गई है. और क्षेत्र में आप बिजनौर चले जाइए, वहां पंचायत हुई है, बड़ौत में पंचायत हुई है, बागपत जिले में, मुजफ्फरनगर में, मथुरा में, उधर जींद में वहां पंचायत. लाखों लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं. उन्हीं के डर से आपने ये सारी कॉन्क्रीटिंग करी है. अगर आदमी छोड़ के चले गए थे, आपके साथ के सहमत वाले ज्यादा संगठन है, तो बहुत भीड़ कम हो जानी चाहिए. तो भीड़ कहां से बढ़ती चली जा रही है? आप उससे घबराए हुए हैं. आपने ट्रेन डाइवर्ट कर दी, आपने तमाम किए. मैं केवल लास्ट में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि तेरी आंख का आंसू सैलाब लाएगा और तेरे दिल का दर्द इनकलाब लाएगा. Pushpender Singh, thank you so much for joining us. But yes, Neha Joshi, now you can respond.
Thank you, Tanvi. You know, I was listening to the Congress spokesperson and she spoke breathlessly and she spoke about many things. What she forgot to speak about was that, you know, there's been a steady decline in farmer suicide rates from 2016 to 2019. That is NCRB data that I'm quoting right now. This is because of the policies of the Modi government. It takes a lot of guts to bring in any kind of reforms. The Modi government dared to do that. You know, we knew that there were going to be, some reservation that some people might have, and that's why there's a channel open for dialogue. You know, she spoke about, you know, the Congress government being so sensitive and there being no protest during the Congress time. Out one of their alliance partners in Maharashtra today was seen shed Mr. ticket at the Singhu border. Now, महाविकास आघाड़ी, इनकी सरकार जितने समय में महाराष्ट्र में रही है, इन्होंने किसानों के लिए, किसान हित के लिए एक कदम अगर उठाया हो तो मुझे बता दीजिए। 35,000 करोड़ देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट था। इन्होंने महाराष्ट्र में जहां फार्मर सुसाइड रेट्स आज भी पूरे देश से ज्यादा हैं, एक कदम बता दीजिए उठाया हो फार्मर्स के लिए। सो यू नो ऑल ऑफ दिस टॉक, बट Can I Congress please One, no, reply, one Tanvi? minute. No, Neha, is the point finished? Yeah. Congress is single responsible for inciting violence. Their leader, Mr. Rahul Gandhi, called the press conference and called for violence. He incited violence. He Yes. asked farmers to He may I'm say so what he hurt. wants to Listen. say. Neha Joshi, okay, you know what? cannot I lie will, on 1 minute, this please, 1 minute. Firstly, I don't want this to be just a BJP versus Congress battle. ये किसानों की बात हो रही है यहाँ पे, और किसान नेताओं ने ये बहुत बार बोल दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी सगी नहीं, किसी ने उनके लिए कुछ किया नहीं। अगर किया होता इतने सालों में तो आज ये नौबत नहीं आती। Let's just be very realistic about it. 1 minute, please. Let me also speak a little. Let's be very realistic. Neha, if you're going to try and talk while somebody else is speaking, we will not be able to hear you. It's a pure technical system issue here. So I'm just telling you, don't waste your energy. I will come to you and you can make your point. But the farmers have absolutely no sympathy or interest in Congress support. You, on the other hand, may be giving far too much credit to your opposition. If any of the opposition parties actually have that kind of a following, there would be bigger challengers to you in any other form. So for you to say राहुल गांधी ने कहा इसलिए सब हजारों में आ गए, आप शायद राहुल गांधी को अब ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं नेहा जोशी, या आपकी पार्टी दे रही है, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि ये बट आई डोंट थिंक यू शुड क्रेडिट द कांग्रेस पार्टी एट ऑल for what is happening here. Let's just be realistic. ये मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, and then I will go to Radhika Khera. Yes. तन्वी जी, मेरा एक क्वेश्चन है नेहा जी से, हाँ. कि आप लोग जो पक्के बैरियर बनवा रहे हो, उससे जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है, जिनको डॉक्टरी की सुविधा चाहिए, वो लोग कैसे होंगे? जिन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उनको ये लोग कहाँ से उनके परिवारों को वापस करेंगे? क्या यही हमारा लोकतंत्र है? आप लोगों ने बिल्कुल उसका रास्ते बनाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है, एम्बुलेंस की जगह बंद कर दी है, आप लोग हत्याएं करोगे लोगों की। ठीक है, नेहा जोशी जवाब दे रही हैं आपको। मलिक साहब बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो। यही सवाल 2 दिन पहले मैंने आप ही के शो पे पूछा था कि ये जो कंसर्न आज मलिक साहब यहाँ दिखा रहे हैं, 1800 ऐसी फैक्ट्रियां हैं केवल सिंघू बॉर्डर पर जो बंद होने की कगार पर हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से। लाखों मजदूर जान जा रही है। अरे आप लोग सरकार हो, आप लोगों को सबकी जिम्मेवारी है, वहाँ कोई परेशान नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। आपके अंदर मानवता मर चुकी है। आप लोगों को ये नहीं दिखता कि परिवारों के लोग मर जाएंगे, वो कहां से वापस आएंगे? हैं आज जब लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जब ऐसे एलिमेंट इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर चुके हैं, कोई किसान कहीं नहीं जा रहा है, उपद्रवियों को आप संभाल नहीं पा रहे हो, निर्दोष किसानों को जेल भेज रहे हो। नेहा जी, आप लोग कुछ तो वो करिए, इतने किसान शहीद हो चुके हैं और आप लोग जो है और लोगों की जान लेना चाहते हो। ओके, ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, ट्रैक्टर चलाने वाले निर्दोष किसान हैं। नेहा, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ और राजीव रंजन से पूछ लेती हूँ, 2 चीजें, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैसेजिंग आ रही है एनडीए सरकार से। क्या आप फार्मर्स की प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और उनके इंटेंट को डिसमिस कर रहे हैं? अगर वो सब वायलेंट हैं और अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये आप उनसे बातचीत करना क्यों ही चाह रहे हैं?
डिसाइड कर लीजिए. तन्वी, It can either be this, no, 1 minute, it can either be this or that. You cannot constantly discredit them, blame them for everything, and then still try and take the higher moral ground of saying, oh, but we are ready for talks. No, Tanvi, if the idea was to discredit the protest, there wouldn't have been these multiple rounds of talk. There wouldn't have been the question of holding Every the laws single in statement abeyance. you've made right now is about discrediting the protest and the protest leaders. I'm also, I listed the number of farmer organizations who have left this protest. So now is the protest listed- discredited? Is the protest discredited now? Sanjay Raut visits the protest when multiple leaders of multiple political parties lead the sit on the stage of this protest becomes politically motivated. This is not about the आप भी चले farmers. जाइए. आपको किसने रोका वहां जाने से? जाइए, भेजिए मंत्री साहब को. किसी ने रोका? नहीं, इसलिए आए हैं कि आपने रात के अंधेरे में किसानों पर लाठियां बरसाई हैं, आपने उनकी बिजली काट दी, उनकी पानी काट दी, निहत्ते किसानों की लाइट काट कर रात में लाठियां बजाओगे तो कोई तो बचाने आएगा, या कोई नहीं आएगा बचाने, आप सबको मार दोगे. मैं ये बता दूं आपको, लेकिन चौधरी मलिक कोई नेता किसी भी पार्टी का आपको बचाने नहीं वाला है. उनको सिर्फ अपने वोटर्स को दिखाना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं. जब मुसीबत आएगी तो कोई नहीं आएगा आपको निकालने के लिए, ना जेल से. Tanvi ji, please take credit. Please take guarantee of the BJP, not of the Congress. The Congress has always stood by the farmers. So don't speak for the Congress. No, no, Speak for the Congress. No. Radhika Khera, you have always stood by the farmers. May I please show you the statistics of farmer suicides? May I please show you the statistics of farmer suicides? Congress Party's one and only solution to farmer wars is farm loan waiver. आप सालों साल कुछ प्रॉब्लम का सलूशन निकालते नहीं, जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, इलेक्शन का समय आ जाता है, तो आप एक फार्म लोन वेवर और कैश इन हैंड दे देते हैं. उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उससे आज की जान बचती है, आगे की उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. 2 साल बाद वापस वो कर्जे में डूबा होता है. सो प्लीज डोंट इवन प्रिटेंड और ट्राई टू बी ऑन द साइड ऑफ द फार्मर्स. नो, आई वांट Radhika Khera to explain to me. Explain to me, Radhika Khera. 5 reforms. 5 reforms. एक मिनट, कांग्रेस का जवाब सुनने दीजिए मुझे. यस, राधिका खेरा, explain to me. First you said don't give credit to Rahul ji for anything. You discredited my leader on national television for reasons best known to you. You may personally not like him. That is your Are you choice. taking credit? Ma'am, I did not say anything. Are you taking credit? Are you saying Rahul Gandhi is the one responsible for this protest and violence? Please let me complete what I'm No, saying. no, I did please. not intervene. Did I speak in between? You said I discredited Rahul Gandhi. Call me, then please let me speak. Don't intervene. Let me understand what you're saying. And I appreciate your debates, and I always look forward to your debates because you never intervene in between. But please let me complete. Number one, the way you spoke about Rahul Gandhi ji, be it any political leader, you may have a personal opinion, but that is not a way to discredit anyone on national television. I do not discredit you or any journalist for that matter. Number two, when you're talking about, and the BJP spokesperson was also talking, maybe she did not understand what I said in English. I will repeat it for her in Hindi. Madam, जिस तरीके से कल ही पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, हमारी देश की वित्त मंत्री साहिबा ने किस तरीके से किसान के साथ बजट में धोखा किया, वे पूरे विश्व और पूरे देश ने देखा. 6% की कटौती हुई है. फैक्ट्स एंड फिगर्स की आप बात कर रही थी तो ये फैक्ट लेकर आती. और जिस पीएम किसान योजना की आप लोग 56 इंच के सीने से दहाड़ दहाड़ के बातें करते हैं, उसी के अंदर 13% की कटौती हुई है. तो ये फैक्ट्स और फिगर्स पढ़ के आइए कि किस तरीके से आपने एक बार फिर किसानों के पीठ पे छुरा भोंका. और आप बात कर रही है कि बिहार का किसान वहां पे नहीं है, वहां पे पूरे देश का किसान है, चाहे तेलंगाना का किसान हो. और महाराष्ट्र सरकार की आपने बात करी थी मैडम, महाराष्ट्र में किस तरीके से आपकी सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था. मिरर नाउ ने लाइव दिखाया था, शायद आपने भी देखा होगा. और वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में जिंदा है, जो किसानों के पैरों के फटे हुए पैरों की तस्वीरें थी, आपकी सरकार में हुई थी. तो ये चीजें ना बहुत दूर नहीं, मैं तो आज की बात करूंगी. कल क्या हुआ, कल किसने क्या देखा, इसकी तो आप छोड़िए, आज भी बात करिए. आज आप लोग क्या करिए, बड़े हितैषी बनते हैं, बहुत हुआ किसानों पर वार, बड़ी बड़ी बातें आपने कर रही थी. क्यों आपने किसान खेती का बजट कम कर दिया?
बड़े हितैषी है ना। और आप जो बातें करती हैं कि बिहार का किसान वहां पे नहीं है, बिहार में तो चलो मंडियां नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहां पे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात करी थी। जब वो मन की बात कर रहे थे, जो वहां पे 250 के करीब मंडियां हैं सरकारी, उसमें से 50% बंद हो चुकी हैं और कुछ जो रह गई है बची खुची, वो तो सिर्फ 50% बिजनेस पे काम कर रही है। तो आंकड़ों के साथ बात करिए, मैं आपको सारे आंकड़े गिनवा दूंगी किस तरीके से आप लोगों ने now, Radhika, now if you are done, आंकड़े गिनाने हुए ना, और मैं बताऊं कि कांग्रेस If you are done, अगर आपने हमारा इतने ध्यान से हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होता ना, जिस ध्यान से आप झूठ बोल रही है, तो आपको पता होता हमने मंडियों को लेकर भी क्या कहा था। शो का टाइम खत्म हो जाएगा और मेरी बात खत्म नहीं होगी। आप ठीक है, तो फिर शो क्या टाइम खत्म होने के पहले मेरे दो बातों का आप जवाब दीजिए। पहला तो क्लैरिफिकेशन, यू से आई डिस्क्रेडिट राहुल गांधी, सो व्हाट आर यू इंसिनुएटिंग? शुड आई क्रेडिट राहुल गांधी विद द फार्मर्स मूवमेंट and the protests which are taking place today? Is that Rahul Gandhi's credit? Because if you miss the point that was being made by Neha Joshi was कि राहुल गांधी जब खड़े होकर कहते हैं कि देश भर में किसान उठेगा, वो उत्साह रहे हैं और उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। Are you telling me I should credit Rahul Gandhi with the violence and the mass movement in the country today? देखिए, मैंने So please don't take offense to the point where there isn't एक बार भी ये नहीं कहा, I never said it even once, Tanvi, that please give credit to Rahul Gandhi ji. We are not taking any credit for anything. But you are getting offended when I am saying don't give credit to Rahul Gandhi. ये हमारे किसान की मूवमेंट है और हमारे अन्नदाता की मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने किसानों के साथ खड़ी है और मैंने सिर्फ उसी बात पे सवाल उठाया when you said that Rahul Gandhi has nothing to be credited for, he has nobody. Madam, we are the single largest opposition right now. I don't know, go back for over 60 years, and this television and the camera and the so decide either using to have this debate have also come under the Congress government. Please don't lecture me of what the Congress government has done. I'm not heckling you, madam, but if you are going to speak and say nasty things about my leader, I have the right. There are only two ways. Let me explain to you again. There are only two ways. Either the Congress party and party leadership is responsible for the mass movement today as is being and the violence that has happened today as is being alleged by the BJP, or the Congress party cannot take credit for it. This is exactly what I said, because you cannot. This farmers movement is supposed to be separate from the two political parties. If you don't want to get into that, explain to me, give me five reforms that the Congress party has done. Reforms, not loan waivers of any kind or cash in hand doles of any kind. Give me 5 reforms that your party has done since you support the farmers so much. Okay, so Tanvi, you are saying the Congress party has done nothing for the farmers. Everything that is happening, from the mandis that has started, from your MSP to everything that has just happened overnight, and Modi ji has done it. The BJP government has done it. For 60 years, the Congress party was in power. We were the first party to form the government in India. So obviously, everything that has happened in the country has happened because of the Congress. The BJP has only gone and cut ribbons. They have only been in power once for 5 years under Vajpayee ji, and now for 6 years. What can they do? What have they done? We've seen yesterday what they think about farmers and about farming and the budget of farmers. And we've seen what they're doing in the 3 farm bills. So by again and again saying what the Congress has done, MSP भी कांग्रेस लेकर आई, मंडिया सिस्टम भी कांग्रेस लेकर आई। मैं लाइन गिनवा सकती हूँ बहुत, तो आप मुझे बताइए हमने क्या नहीं किया। आपको इतनी दिक्कत क्यों है अगर किसानों का कर्ज माफ किया जाता है? अगर किसान सुसाइड कर रहे हैं, वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो हम क्या कर्ज माफ नहीं कर सकते? ठीक है, let's get in a response. It's a very simple thing. तन्वी जी, let me complete. छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट। तो इसीलिए ना वहां भी कांग्रेस की सरकार है। जो हम वादे करते हैं पूरे करते हैं। गिनवाने लग जाओ तो मैंने जैसे बोला टाइम खत्म हो जाएगा। कई रिफॉर्म नहीं, टाइम नहीं खत्म होएगा, पर आपने गिनवाने के बजाय आधा आंसर अपना काउंटर क्वेश्चन में लगा दिया, बजाय कि आप जवाब दे। The problem is not to say farm loan waivers are bad. They are not the solution to the larger problem. If year after year thousands of farmers, 1 minute now, Radhika, I have to speak now. You've spoken. I will tell you what the reality of this country is and the farmers is. और ये मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी किसान नेता जो आज सरकार से बात कर रहा है, वो खुद ये कहता है हमें किसी भी पार्टी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें सब भूल चुके थे। ईयर आफ्टर ईयर 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 फार्मर सुसाइड जो हो रहे हैं, वो सडनली मोदी सरकार के आने से शुरू नहीं हुए, वो कंटिन्यू हुए। न तब कम हुए, न पहले कम थे। ये है हमारे देश की रियलिटी। लेट्स प्लीज एक्नॉलेज दैट। जो रिफॉर्म्स की आज हम बात कर रहे हैं, जिस पे चर्चा हो रही है, जिस पे डिबेट हो रही है, वो रिफॉर्म्स आपके समय में हो सकते थे, आपने नहीं किए। और ये भी एक सच्चाई है।
So please, let's not pretend that we are all for farmers when we couldn't do the things that could have been done at that point of time. That's the simple point. Now, आज की बात पे आते हैं, क्योंकि आज की बात इंपॉर्टेंट है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीए सरकार की है। राजीव रंजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब जब आप या भाजपा जितना चाहे डिस्क्रेडिट कर दे किसानों को और कहें कि 200 ही हैं, 2000 नहीं है, या 2000 ही हैं, 2 करोड़ नहीं है, लेकिन वो वहाँ बैठे हैं। इन्हीं लोगों से हम आज तक बात कर रहे थे और अब हम कह रहे हैं हमें बात करनी है, लेकिन हमें आप पे भरोसा नहीं, क्योंकि आप दंगाई भी हैं, इसलिए हमने वहाँ बैरियर्स लगा दिए। ये मैसेजिंग में प्रॉब्लम है राजीव रंजन। एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं, केवल हाँ और ना में इसका जवाब नहीं है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर एक अलग इशू है। दिल्ली पुलिस की जिस तरह से भटपिटी है, निश्चित तौर पर अपनी साख बचाने के लिए उसको कुछ बड़े फैसले लेने थे और मुझे लगता है इसकी अनुमति उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। दूसरी बात है, जहां तक किसानों को लेकर के केंद्र सरकार के रवैये का सवाल है, फार्म बिल के इस टकराव को लेकर के पहले दिन से कृषि मंत्री को मैं देख रहा हूं, वो लगातार मुखर रहे हैं और लगातार बातचीत में शामिल होने का न्योता देते रहे। अगर बातचीत की कोशिश नहीं होती तो 11 राउंड ये बैठ के नहीं हुई होती। लेकिन जहां तक आंदोलन के बिखराव का सवाल है, तो इस बात को कैसे नहीं नकारा जा सकता है कि आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था, उतने सारे संगठन एक जगह नहीं है, फिर भी बातचीत के लिए सबको बुलाया जाता है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस, एक काफी लंबी चर्चा उन्होंने की है, लेकिन इसका कभी वो जवाब नहीं दे पाएंगी कि मंडियां वही लाए, लेकिन मंडियों से लेकर उनकी परेशानियां बढ़ी है, उनको अपनी साख बचाने का जब एक मौका उन्हें दिखा तो 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात की। तो मेरा ये कहना है कि इस एक्ट को लेकर के आज जो बदलाव को लेकर के पूरी तरह से वो विरोध कर रहे हैं, तो 2019 को गुजरे हुए कितना दिन हुआ है? 2012 का जो फैसला है, उनके 12 कांग्रेस शासित राज्यों में एपीएमसी एक्ट से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को बाहर करने का, वो क्या बताता है? और आज एक बात बिल्कुल साफ है, आपने भी वो उस बात को दोहराया है, कांग्रेस को किसानों की बदहाली की नैतिक जवाबदेही लेनी चाहिए। ये सच है कि 11 वर्षों का शासन भाजपा का या एनडीए का है, देश पर 50 वर्षों से ज्यादा हुकूमत, 6 सीधी सरकारें और 4 गठबंधन सरकारों की अगुवाई कांग्रेस ने की है। अगर इन वर्षों में किसानों की आत्महत्याएं बदस्तूर जारी रही, बैंकों के कर्ज पर उनकी निर्भरता बनी रही, देश के जीडीपी में उनका योगदान घटता चला गया, तो बजाय ठीकरा फोड़ने के कांग्रेस कहे कि हमसे गलती हुई है और किसान आंदोलन को बख्श दे। किसानों का भी भला तभी होगा जब कांग्रेस, आरजेडी, आप या समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं या जो एनसीपी जैसी पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने जितना किसानों का नुकसान किया है, उन्हें इसकी नैतिक जवाबदेही लेनी चाहिए और किसान संगठनों को भी उनसे माफी की मांग करनी चाहिए। नहीं, मैं एक बात बस क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बार बार बात उठाई जाती है और इसके डिटेल में अब जाने का मतलब नहीं, हम कितनी भी बार क्लैरिफाई कर ले। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात की जाती है राजीव रंजन, उसके साथ और भी उसमें लेयर्स हैं। उसको किस तरीके से करना है, उसके जगह पे क्या मार्केट सेटअप लेके आना है, वो अलग है। वो जो एनडीए सरकार आज कर रही है, करने चाह रही है इन 3 लॉज के थ्रू, वो नहीं है। The two proposals are very different. हाँ, तो अगर आप कहते हैं कि ये मंडियों का सिस्टम खराब है, इनको यहाँ से हटाओ या रिफॉर्म करो और बदलाव लेके आओ, वो बदलाव एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का क्या तरीका है, और अगर यूपीए की सरकार होती वो क्या तरीका अपनाते, वो अलग होता, ये हमें पता है। दिस इज नॉट व्हाट दे वर प्रपोजिंग। यू नीड, जो कहा उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि वो कहीं न कहीं इस पूरी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। हाँ। और इसीलिए वो बदलाव की बात करते थे। करेक्ट। आज इस पूरे बिल को वापस लिए जाने की मांग करके कांग्रेस क्या कहना चाहती है? पहले उन्होंने गलती की, जब उन्होंने बदलाव की बात की, तो क्या वो मैनिफेस्टो में जिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात उन्होंने कही या एपीएमसी एक्ट को लेकर के जो बातें कही, क्या वो गलत थी? इसको ही वो स्पष्ट कर दें। ठीक है, राधिका खेरा। रंजन जी, मैं आपको बता दूं,
जब कोई भी लॉ आती है 60 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले, चाहे 2 साल पहले भी, वक्त बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, विश्व में चीजें बदलती हैं। आज किसी ने सोचा था कोविड जैसी सिचुएशन पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो चीजें बनेंगी वो उस चीज को नजर में रख के बनेगी। इसीलिए हर समय पर जो चीजों में कमी आती है उनको बदलाव लाना पड़ता है और लॉज बदली लानी पड़ती है। इसीलिए हो सकता है जो हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले रिफॉर्म लाए थे, आज उनके अंदर और रिफॉर्म की जरूरत है। और अगर आपने हमारा मैनिफेस्टो अच्छे से पढ़ा होता तो मैं, आप जैसे कह रहे थे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। हमने बात करी है क्योंकि मंडियां इस समय, अगर एक किसान को अपनी मंडी में सामान बेचने जाना है तो कई बार मंडी 15-15 किलोमीटर दूर होती है। हमारा प्रपोजल ये है कि हर जिले में हम मंडी बनाएंगे आसपास, ताकि किसान को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े अपना सामान बेचने को। क्योंकि आप ही के आजकल जो साथी है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि बाहर का किसान आके अगर मेरे प्रदेश में, और ये 3 काले कानून आने के बाद की बात है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर का किसान आके मेरे प्रदेश में अपना सामान बेचने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर राजद्रोह लगाऊंगा और उसकी ट्रक को जब्त कर लूंगा। खट्टर साहब कहते हैं, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनिए, आपके मैंने आपको केवल जानकारी दी, उस पर क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आ चुका है। कंप्लीट करनी दीजिए, देखो कंप्लीट करनी दीजिए, उसके बाद आप जानकारी दीजिएगा। दूसरी बात, खट्टर साहब ने यह भी कहा कि बाहर का कोई भी किसान आके मेरे हरियाणा में कुछ नहीं बेच पाएगा। वही खट्टर साहब जो हमारे किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी भी बुलाते हैं। और रही दूसरी बात, हमारा बस एक सिंपल सवाल है, ये तो मैंने आपको मंडियों का जवाब दे दिया। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते हैं? उन्होंने तो लिखित तौर पे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, लिख के दिया था कि एमएसपी एक कानूनी तौर पे लिखी जानी चाहिए। आज वो क्यों नहीं लिख के दे रहे? बिल के अंदर कहीं पे भी एमएसपी शब्द क्यों नहीं है? अरे हमारी छोड़िए, कांग्रेस तो सबसे बुरे लोग हैं, कांग्रेस ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस की वजह से तो पूरा देश बर्बाद है, इसीलिए शायद आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हो और कंप्यूटर भी, जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी झोटा बुक्की पे गए थे पार्लियामेंट पे इन्हीं चीजों का विरोध करते हुए। तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है पूरे देश ने देख रखा है। लेकिन इतना ही बता दीजिए कि मोदी जी अब अपनी देखिए, बात विज्ञान क्यों और मानते हैं? तकनीक का इस तरह मुख्यमंत्री से, साहब जब वो थे, विज्ञान और तकनीक का इस तरह से श्रेय मत लीजिए। हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ था उसी के आसपास पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी विश्व के मानचित्र पर जगह मिली। और पीआरसी कहाँ है और आप कहाँ है? नहीं, इस तरीके से आप भी मत बोलिए कि आज चलिए एक मिनट, पूरे हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया या क्या कर सकती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो डिबेट नहीं अब कर सकते, और एक दिन उसको करेंगे। लेट मी जस्ट गो बैक टू आवर फार्मर रिप्रेजेंटेटिव एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन। चौधरी सवित मलिक, आपने सुना कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या कह रहे हैं, अब इसमें किसान लीडर का क्या कहना है? मैं इनकी ज्यादा बातें समझ नहीं पाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने किया उसका वो झेल रही है, आज वो सत्ता से बाहर बैठी है। अगर आप लोग भी वही करोगे तो कल आपको भी बाहर बैठना पड़ेगा। हम सीधा सीधा आपको ये कह रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए आपको किसान और मजदूर ने वोट दिया है, अगर उसको आप ऐसे तड़फाओगे, यही अच्छे दिन है कि वो दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहेगा, उसका नेट बंद कर दोगे, उसका पानी बंद कर दोगे, तो ये आपको वोट की चोट में मिलेगा। आप लोगों को जानकारी नहीं है कि इस आंदोलन को जितना जल्दी खत्म कर लोगे उतना आपका फायदा है, और जितना ये लंबा चलेगा उतना आपका नुकसान होता जा रहा है। जो लोग युवा आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो युवा अब आपसे कट है, किसान आंदोलन में आ गया, वो समझ गया है कि आप लोग कितना झूठ बोलते हो। अभी मैंने आपको बताया था, खेती का जो बजट है उसको आपने 6000 करोड़ कम कर दिया है, जबकि कोरोना काल में सब लोग घर में सो रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहा था, और उसने जीडीपी में 3.5% की ग्रोथ दी है। लेकिन आप लोग किसान को ही निपटाने में लगे हुए हो, उसको कोई बात मानने को तैयार ही नहीं हो। आप कहते हो हमने इतने घंटे बात कर ली, इतनी बार मीटिंग कर ली, अरे उसका नतीजा क्या है? आप तो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हम होल्ड कर देंगे, उसके बाद आप कर रहे हैं हम होल्ड कर देंगे। आपने कहा हमने इनकी 50% बात मान ली, 2 बिल मान लिए, उसी के बाद माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं पराली पत्ती वाले पे, बिजली वाले पे हम विचार करेंगे। तो हम लोग आपकी बातों पे कहां से विश्वास कर ले? आप एक दिन कुछ और कहते हो, अगले दिन कुछ और कहते हैं। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा है हर चैनल की डिबेट में कि जो भी किसान की और सरकार की बात हो उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, पता लग जाए कि सरकार झूठ बोल रही है, किसान झूठ बोल रहे हैं।
जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा का लाइव प्रसारण हो सकता है, तो इतना बड़ा मुद्दा है, ऐतिहासिक ये धरना चल रहा है, तो क्या इसका लाइव प्रसारण नहीं हो सकता? क्योंकि हमको पता है सरकार के नुमाइंदे अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर जब टीवी चैनल पे आते हैं, माइक देखते ही वो कहते हैं हम तो एमएसपी पे बात कर रहे हैं, हमने तो ये बातें मान ली। वो पर अंदर कुछ चौधरी सवित मलिक, उतना तो भरोसा दोनों साइड से दिखाना पड़ेगा कि आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस पे भरोसा हो कि रणवीर जी, पूरे अगर मन इसका से लाइव ऑनेस्टली हो रही है ये बात, नहीं तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर दोनों साइड एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे कि आज ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप ऐसी बैरिकेडिंग, ऐसी तारे, कंक्रीट ब्लॉक, कीले लगा के रास्ता बंद कर देंगे, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, खाने पीना आने जाने की प्रॉब्लम लोगों की कर देंगे, तो किसान कैसा भरोसा करेगा बातचीत में? उसी तरीके से वो भरोसा तो दोनों साइड से करना है। एंड आई थिंक इस समय ये दोनों साइड पे डिपेंड करता है। फार्मर्स जिनकी अश्योरेंस थी कि पीसफुल रैली होगी, वो उस पर फेल हो गए, क्योंकि जैसे भी हुआ हो उनकी अश्योरेंस के बावजूद उस दिन वायलेंस हुआ और भरोसा आप पे किया गया था। तो अब अपनी आपकी तरफ से आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वापस से। रणवीर जी, उससे हमारे आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम चाहेंगे जो 2 महीने से तपस्या कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन खराब हो जाए, वो साजिश के तहत हुआ है। हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, वहां रात दिन वो हैं, हमारे 200 प्लस किसान शहीद हो गए हैं, तो हम लोग तो यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करने आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कुछ करके चक्रव्यूह रच रहे हैं किसान के लिए। अरे किसान भोला भाला है, सीधा साधा है, ये तो अपने खेतों में काम करना चाहता है, इसको राजनीति में मत डालिए आप। ओके, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसलिए मैं अभी के लिए मुझे ये रोकना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स एंड पैनलिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वेरी सिंपल। ए डायलॉग and resolution via dialogue only works when the two sides can trust each other, when the two sides have faith that the other one is not trying to outsmart them. If this becomes a game of trying to outsmart each other, then let's pretend to be on the conversation table, but behind each other's back we are trying to play some other game. It's not going to work. 3 महीने से वहाँ पे हजारों किसान बैठे हैं। 26 जनवरी के वायलेंस के बाद many people said that this protest is going to die out, that these sites will be empty very soon. The farmers are going to go back or go into jails, and this is the end of the protest. But what has happened is instead, in places like Ghazipur, they've only grown in numbers because of appeals and emotional appeals made by Rakesh Tikait. He's now emerged as a farmer leader who people are following all across Uttar Pradesh now. In many parts, protests are taking place and people are gathering in larger numbers. So if the government thought, for whatever reasons, that this protest would weaken after the violence, that's not happened. Will it weaken now with all of these security measures? They may be justified. We've had violence and an explosion in our national capital. But does it make for a conducive atmosphere for conversation? That the government may have to think about. I leave it here. Thank you so much for joining us. Since 1919, Citroën has created innovations that make every drive comfortable. Now you can experience that comfort in India. Citroën, inspired by you, inspired by India. डिस्चार्ज, हॉस्पिटल का बिल मोटा बनेगा। अरे सही इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस देखो पे कंपेयर करके लिया। पर क्लेम सपोर्ट। इंश्योरेंस देखो पे है हेल्प डेस्क, जो आपके साथ खड़े रहे पॉलिसी खरीदने से क्लेम सेटलमेंट तक। मुच्ची InsuranceDekho.com। सही इंश्योरेंस कंपेयर करो, सही प्राइस पे ले लो और क्लेम सपोर्ट हमारे हेल्प डेस्क पे छोड़ दो। आप इंश्योरेंस देखो, बाकी हम देख लेंगे। AIMS, empowering minds. Since 1919, Citroën has created innovations that make every drive comfortable. Now you can experience that comfort in India.
Citroën. Inspired by you. Inspired by India. ये अप्रूव्ड एंटी राइट गियर नहीं थे। ये लोकल लेवल पे जिस किस्म के कुछ हादसे हमने देखे हैं जिसमें सोलर का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद एक एक्सपेरिमेंट किसी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अप्रूव्ड राइट गियर के तौर पे इसको हमारे दस्ते में शामिल नहीं किया गया है। लोकल लेवल में थाने के लेवल का ये अरेंजमेंट था? थाने के लेवल पे अरेंजमेंट था, लेकिन हम तब तक किसी भी इक्विपमेंट को अपने उसमें नहीं लेते जब तक उसका कोई ट्रायल नहीं हो जाता, उसका मकसद समझ में नहीं आ जाता, इसलिए इसको अभी फिलहाल यूज नहीं किया जाएगा। But the Joint CP, they're really explaining the picture that emerged yesterday and went viral, the picture that you're looking on your screens. Now, the Delhi police says that this is not an armor of any kind that will be used, because we saw on the day of violence that some people were carrying swords. One of the units decided to experiment with this, but the police is now clarifying, because obviously there have been many questions raised and some amount of backlash as well after the picture went viral, that this is not something that the Delhi police intends to use.